anomalous expansion. Anomalous expansion of water. So what is anomalous? Anomalous means exception, okay, not normal, unusual, okay. So what is expansion? The property of matter is this, that if you supply heat, suppose this is a metal, okay, now if you supply heat, then it will expand. Okay, so on heating, if you increase the temperature, the expansion happens. If the expansion happens in length, it is called linear expansion. If it is a two-dimensional body, then its area will increase. Two-dimensional expansion means surface area expansion. If it is a cube, suppose if it is a three-dimensional body, then there will be increase in the volume. So effect of heat on a material body, on a body, is this, that it will expand. So this is called expansion. Now, in case of water, there is some abnormal behavior of water. Okay. Now, what is this abnormal behavior? Suppose you have water. So what happens? Suppose you have gas molecules in a cylinder. Okay. Let us understand the effect of heat or effect of reducing temperature. What is the normal behavior? Let us understand. Okay. Suppose there is a gas. And this piston is allowed to move up or move down as per the pressure exerted by this gas. These are gas molecules. Now it has certain temperature. Okay. Because of pressure, the piston is here. Now suppose you put it in a ice bath. This is ice. So what happens? When the temperature decreases, okay, so initially the molecule was separated and these molecules of gas were far apart. Now what happened? As the temperature decreases, then the molecules' randomness, the vibration, the kinetic energy of molecule will decrease. Okay, so they will come closer. So each molecule will come closer. So as a result of this, what will happen? Entire space occupied by the gas molecules will now shrink. Okay, so what will happen? This gas molecule will be confined to a smaller space. So what happens, since the molecules are coming closer, it means that density increased. Na? Density increased. So volume decrease means density increases. Okay. So suppose this is at 27 degrees Celsius. Now this is at 10 degrees Celsius. Now if you further reduce the temperature, then what will happen? The gas molecules will come further closer to each other. It will more shrink, and as a result of this, as the temperature decreases, the piston will automatically come down because the volume will shrink. No? So the piston will come down. So this is the normal behavior of a gas or any matter per se. So if the molecules has some degree of freedom, means if the molecule can come closer, because the heat is extracted, because the temperature is decreased, then they will come closer and density will decrease. But in case of water, suppose this is a temperature curve of temperature line. Okay, so suppose this is 100 degrees Celsius when water starts boiling. Okay, and this is 0 degrees Celsius when water freezes and becomes ice. So at this temperature, water will become ice. At this temperature, water will become steam. Na? So this is boiling point, this is freezing point. Now if you decrease the temperature, what will happen? The molecule will come closer, water molecules will come closer. Okay. Now as a result, the volume will shrink and density will increase. Okay. So what happens? So there are two graphs I will draw now. One is volume versus temperature. This is x-axis, this is y-axis. Okay. Now this is temperature. Okay. And this is volume. So as the temperature decreased, okay, so the volume will reduce
volume, say volume is, this is maximum volume at 100 degrees Celsius. So it has some volume, say. Now this volume will decrease, but the moment it, you can just revert it back. Yes. okay. Now when the temperature decreases, the volume also, when the temperature increases, the volume increases, but when the temperature decreases, the volume will decrease. Okay. So, but when it reaches 4 degrees Celsius, these water molecules tied together because of water bond and forms a crystalline-like structure. Now this crystal-like structure, it occupies more space than the normal water molecule. So all the water molecules get connected with each other and forms a waterlock system. So as a result, at 4 degrees Celsius क्या होगा कि इसका जो है ना, इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम श्रिंक, फर्दर श्रिंक ना होके यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. अभी क्या होगा, डेंसिटी और इसका कम होगा नहीं. मतलब डेंसिटी अभी क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम और श्रिंक नहीं करेगा. वॉल्यूम अगर श्रिंक नहीं करेगा तो क्या होगा, डेंसिटी और ज़्यादा डेंस होगा नहीं. ठीक है ना. डेंसिटी और बढ़ेगा नहीं. वॉल्यूम श्रिंक करने से डेंसिटी बढ़ता है, तो वॉल्यूम ही श्रिंक नहीं करेगा बिकॉज वाटर अभी क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में आ गया वाटर बॉन्डेज के कारण. हमसे क्रिस्टलाइन लाइक स्ट्रक्चर. Now this crystal-like structure, it occupies more space than the normal water molecule. So all the water molecules get connected with each other and forms a waterlock system. So as a result, at 4 degrees Celsius क्या होगा कि इसका जो है ना, इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम श्रिंक, फर्दर श्रिंक ना होके यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. अभी क्या होगा, डेंसिटी और इसका कम होगा नहीं. वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करूँ. सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. अच्छा चलो 4 डिग्री सेल्सियस में मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 डिग्री सेल्सियस में इसका वॉल्यूम डेंसिटी मैक्सिमम हो गया. और उसके बाद अगर मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज करूँ तो क्या होना चाहिए था, उसका नॉर्मल बिहेवियर अगर होता तो वॉल्यूम श्रिंक करना चाहिए था, डेंसिटी बढ़ना चाहिए था. लेकिन डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, डेंसिटी कम होते जाएगा. करेक्ट. तो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा उसका डेंसिटी है. उसके बाद अगर फिर और हम टेम्परेचर को कम करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम श्रिंक नहीं करेगा. वॉल्यूम श्रिंक नहीं करेगा तो डेंसिटी उसका बढ़ेगा नहीं, डेंसिटी कम हो जाएगा. इसीलिए क्या होता है, वाटर का सरफेस में मान लो बहुत कम टेम्परेचर हो गया. टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाएगा, वो आइस फॉर्म कर जाता. ठीक है. आइस फॉर्म कर जाता. आइस क्या करता है, आइस का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम है, इसलिए फ्लोट करता है. करेक्ट ना. तो 4 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा जो आइस का लेयर है ना, वाटर का सरफेस के ऊपर आ जाता है. मतलब जैसे 0 डिग्री रीच करता है ना, तो इट बिकम्स आइस. एंड आइस चूँकि लेस डेंसर है, वाटर से फ्लोट करेगा. ना आइस इज सर्विंग एज ए बैड कंडक्टिंग लेयर. तो जो एक्वेटिक एनिमल है, जो फिश ये सब जो है ना, उसको क्या करता है, आइस एक बैड कंडक्टिंग मटेरियल की तरह एक लेयर की तरह काम करता है. तो क्या होता है, और बाहर का और अगर टेम्परेचर और कम होते जा रहा, मान लो बाहर का टेम्परेचर, तो आइस बैड कंडक्टिंग है, तो ये कम टेम्परेचर को नीचे तक नहीं पहुंचाता. तो नीचे का पानी गर्म रहेगा, ऊपर का जो है ना आइस के लेयर का ऊपर का पानी ठंडा रहेगा. और इसलिए क्या होता है ना, सारे के सारे जो वाटर है वो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि जैसे ही कोई आइस बन जाता है ना, यहाँ पर जैसे ठंडा हो गया तो ऊपर चले जाएगा, क्योंकि आइस का डेंसिटी कम है. तो एक्वेटिक एनिमल जो फिश ये सब है, उसको नीचे में सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, पूरा आइस नहीं होना चाहिए ना, तो ये वाटर ही रहना चाहिए. सो नीचे का टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा रहता है, लिक्विड रहता है. तो जब भी हम लोग डायनामाइट यूज़ करके, मान लो कि कोई समुद्र में कोई जहाज़ जा रहा है ना, तो इसको अगर मान लो कि यहाँ पर आइस का चंक दिखा, तो ये लोग क्या करता है, डायनामाइट यूज़ करके इसको एक्सप्लोड कर देता.
बट नीचे में का पानी आइस में नहीं कन्वर्ट हो गया रहता, नहीं तो फिर तो जहाज चल ही नहीं सकता है. ओके, सो इसके लिए क्या कहा जाता है कि भाई दिस इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन. मीन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस the density here is maximum. If you further reduce the temperature, then instead of है ना, instead of density, और इसका क्या होगा, इसका बढ़ेगा नहीं, डेंसिटी जो है ना कम होते जाएगा. 4 डिग्री को पहुंचने के बाद बोल रहे हो आप? हाँ, और यहाँ से क्या 100 डिग्री से 4 डिग्री तुम रिड्यूस करो, जैसे जैसे तुम रिड्यूस करेगा ना तो वाटर मॉलिक्यूल और क्लोज आते जाएगा. हाँ. और क्या होगा, वॉल्यूम श्रिंक कर रहा तो डेंसिटी बढ़ते जाएगा. हाँ. डेंसिटी का मैक्सिमम कब हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में इस तरह का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है वाटर बॉन्डेज के कारण. एंड ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता कंपेयर टू द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग द स्पेस. मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड करके जो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ना, इसमें जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इंडिविजुअल इतना वाटर मॉलिक्यूल अगर अलग अलग रहता है तो उसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, दोनों को कंपेयर करके देखा गया कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है ना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इसके लिए इसका वॉल्यूम जो है ना, इसका मतलब वॉल्यूम जो है ना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर. तो यह इसके बाद जो है ना, और तुम कैसे भी करो, कोशिश करो, तो इसका जो है ना वॉल्यूम और सिंक होगा नहीं, है ना. सो इसके बाद डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा मतलब आइस का डेंसिटी कम है कंपेयर टू द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो इसके लिए हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं कि भाई नॉर्मल बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि 4 डिग्री के बाद और भी अगर ज़्यादा जाए तो और डेंसिटी बढ़ना चाहिए था, वॉल्यूम और सिंक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता. करेक्ट ना. नाउ अभी अगर तुमको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ग्राफ दिखाया जाएगा, मान लो कि मैं वॉल्यूम को इस तरफ दिखाया, टेम्परेचर को इस तरफ दिखाया, ठीक है. तो 4 डिग्री सेल्सियस में एग्जैक्टली जो है ना, ये टेम्परेचर ना, हाँ ये टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो स्मॉल टी में लिखते हैं, चलो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 4 डिग्री. तो 4 डिग्री में सबसे कम जो है ना इसका वॉल्यूम होगा, उसके बाद और वॉल्यूम कम नहीं होगा. और 0 डिग्री में क्या होगा वाटर का, 0 डिग्री में इसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा. सपोज ये मैं इसको 1 मानता हूँ, सपोज 1, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, लाइक दिस, है ना. तो 4 डिग्री में यहाँ पर इसका मैक्सिमम ये आया, है ना, वॉल्यूम यहाँ पर आ गया. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो इसका डेंसिटी 1 हो जाएगा 4 डिग्री में. और उसके बाद भी अगर टेम्परेचर 6, 7, 8 बढ़ाते रहूँगा तो ये कर्व ऐसा हो जाएगा, ऐसा. देखो इसको समझो. हाँ, ये 1 है, ये मैं इसके इस तरह से ले जाता हूँ कि ये 1.001 से भी ज़्यादा है. 1 अगर क्या मैथमेटिकली देखा गया 0001 उससे भी ज़्यादा है, ठीक है. ये जो है ना 1.0002. तो 4 डिग्री सेल्सियस में जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाया ना, या फिर दूसरे तरह से बोलते टेम्परेचर जब कम किया तो यहाँ पर आके ये फिक्स हो गया 4 डिग्री सेल्सियस में. तो टेम्परेचर बढ़ाते गया तो वॉल्यूम कम होते होते, वॉल्यूम देखो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम हो रहा था, हाँ, तो ये सबसे कम हो जाएगा. कम होने के बाद अगर मैं और बढ़ाऊँगा टेम्परेचर तो वॉल्यूम उसका बढ़ने लगेगा, ठीक है. ये तो नॉर्मल, ये पार्ट नॉर्मल बिहेवियर है. बट ये जो पार्ट है ना कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस में कि हाँ ये अब नॉर्मल है, कि यहाँ तो कम नहीं होना चाहिए था ना, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर. सो दिस इज द ग्राफ विच इज शोइंग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, है ना. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा, मेरा जो ग्राफ है इस तरह का, इसको ले लेते हैं. ग्राफ ऐसे जा रहा, समझो. हाँ. नॉर्मल बिहेवियर क्या होना चाहिए. देखो गैस का क्या बिहेवियर रहता है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ते रहता है ऐसा, है ना. टेम्परेचर भी बढ़ रहा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा. बट वाटर के केस में ऐसा होता है. एंड दिस इज द मिनिमम वॉल्यूम इज एट
टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नॉर्मल बिहेवियर जैसे काम करेगा। ओके, अच्छा, अभी अगर डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, ये डेंसिटी है मान लो, और यहाँ पर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो क्या होता कि देखो 4 डिग्री सेल्सियस में ना, 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस में इसका जो है ना मैक्सिमम डेंसिटी होता है। At 4 degrees Celsius the density is maximum and maximum density is 1, ठीक है। सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस है ना, 1 ग्राम वाटर का, 1 ग्राम वाटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी बोलते हैं या मिलीलीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी वाटर का डेंसिटी बोला जाता है ना, वाटर का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि द टेम्परेचर, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, करेक्ट। सो देखो ये 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ये डेंसिटी, ऊपर में डेंसिटी लिखा मैंने, एंड डेंसिटी का यूनिट क्या है, इन सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 4 डिग्री से कम हुआ तो उसका डेंसिटी कितना हो गया, ये जैसे मान लो ये इसका वैल्यू मैं लिख रहे 0 डेसिमल के बाद 4 9, ठीक है। ये जो है डेसिमल के बाद 3 9 1 8 है ना, 3 9 1 8, ठीक है। ये है डेसिमल के बाद 3 9 1 7, ठीक है, 0 पॉइंट। तो देखो 1 डिग्री में इतना है, 2 डिग्री में इतना है, तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा, मेरा डेंसिटी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी बिकम्स 1 ना, डेंसिटी बिकम्स 1 मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, डेंसिटी इज व्हाट, मास पर वॉल्यूम ना, 1 ग्राम पर 1 सीसी 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में। इसलिए जब भी वाटर का हम लोग कभी भी डेंसिटी बोलते हैं ना, तो टेम्परेचर मेंशन करते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे तुमने अभी रिलेटिव डेंसिटी देखा, रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन में क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी के केस में क्या हो रहा, शुरू में टेम्परेचर जब बढ़ा रहा हो तो डेंसिटी बढ़ रहा है, देखो डेंसिटी कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिकम्स, वो दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा कि गैस लॉज में कैसा रहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ोगे मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब डेंसिटी कम होना चाहिए, लेकिन इसका देखो डेंसिटी बढ़ रहा। फिर डेंसिटी बढ़ते बढ़ते 4 डिग्री सेल्सियस में एकदम मैक्सिमम पहुंचता है, फिर नॉर्मल बिहेवियर करता है 5 6 7, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ते हो फिर उसका डेंसिटी कम होते जाता है। तो क्लियर हुआ ना। सो दिस इज डेंसिटी वर्सेस ग्राफ इज इन्वर्टेड, ऐसा ग्राफ है। एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ है, एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ऐसे ग्राफ है। क्लियर ना, क्लियर हुआ। अच्छा नाउ अभी अच्छा इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ना, जो वाटर पाइप में मान लो कि ये वाटर पाइप है, क्योंकि जहाँ से वाटर का लेक है हम लोग का, जैसे वाटर सप्लाई होता है, करेक्ट, तो वहाँ से हम लोग के पास वाटर क्या, पहले बड़े बड़े पाइप रहता है, फिर वो हमारे घर तक आता है, टैंक में स्टोर होता है, फिर टैंक से हमारे नल में आता है। अभी क्या होता है, जैसे मान लो कि कोल्ड कंट्रीज़ में कैसा होगा, या ये पाइप में जब वाटर होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, उसका डेंसिटी मैक्सिमम रहता है ना। तो क्या, जिसके कारण देखो 1 मिनट, जो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा, है ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम
ए हो गया, ये देखो 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कम हो गया, और आउट टेम्परेचर और कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। देखो टेम्परेचर कम हो रहा तो वॉल्यूम बढ़ रहा। तो अगर कोल्ड कंट्रीज में वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा वाटर का सॉलिडिफाई होने के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये पाइप में क्रैक आ जाएगा ना। सो इन कोल्ड कंट्रीज है ना, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन द वाटर जो पाइप में कैरी हो रहा है ना, दिस पाइप्स बस्ट आउट, ठीक है। सो द वाटर पाइप बस्ट आउट। सो bursting of water pipe, this happens. This is one. Second is, ये जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब पानी में जो रहने वाला है ना लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, ये कैसे जीता है। देखो पानी में, मान लो कि ये मेरा एक ओशन है, ठीक, ओशन के एक सेक्शन को मैं दिखा रहा हूँ। तो ओशन में क्या हो गया, ये वाटर है, तो जैसे ही टेम्परेचर कम हो गया तो आइस हो गया। आइस का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम है, नहीं तो अगर टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी बढ़ता है ना, तो आइस कभी नहीं फ्लोट करता, करेक्ट ना। क्योंकि कम हुआ इसलिए आइस क्या हुआ, ऊपर में फ्लोट कर गया। तो आइस अभी क्या हो रहा, ऊपर में फ्लोट हो गया। तो ये सब आइस है। अभी आइस क्या करता है, बट इसका मतलब ये है कि आइस ऊपर है तो नीचे का टेम्परेचर जो है ना 0 डिग्री से कम नहीं होगा। नीचे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और पूरा फ्रीज होता भी नहीं है। और आइस क्या करता है, नॉन कॉन्डक्टिंग लेयर की तरह काम करता है। तो बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंडा और आ रहा है तो क्या करेगा, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो आइस क्या करेगा, उस ठंडा को अंदर नहीं आने देता है ना, बैड कॉन्डक्टिंग के लिए, समझा, है ना। अच्छा, इसलिए जो इसके जो अंदर में जो फिश है ये सब अपना सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। अच्छा, नाउ अभी हमको एक एक्सपेरिमेंट करना था। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो साइंटिस्ट का नाम था टी.सी. होप। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एनोमलस एक्सपेंशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 1805 ईयर में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वेरी सिंपल, एक ऐसा जैसे जार टाइप का लिया, जैसे हमारा वाटर कंटेन कर सकते हैं ना, वैसा सिंपली एक जार लिया, मेटेलिक जार ले लिया, ठीक है, और इसमें वाटर भर दिया। देखो अभी ये अच्छा से देखो। हाँ, अभी इसमें क्या कर रहे हैं, एक इसका मिडिल पोर्शन में इस टाइप का एक बेल्ट, मतलब एक रिंग टाइप का है जिसमें आइस क्यूब रख दिया यहाँ पर, आइस कर दिया, सो दैट इस बेल्ट में जो भी आइस इसका वाटर को ठंडा होके जो है ना ये इसका टेम्परेचर को कम कर देगा। अभी 2 थर्मोमीटर लगाया, एक थर्मोमीटर नीचे यहाँ पर और एक थर्मोमीटर ऊपर लगाया। इस थर्मोमीटर का नाम दिया T2, दिस इज T2, एंड इस थर्मोमीटर का नाम दिया T1, ठीक है। सो ये जो है ना, दिस इज आवर मेटेलिक सिलेंडर फिल्ड विथ वाटर। मेटेलिक सिलेंडर फिल्ड विथ वाटर। ओके, अच्छा, ये क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर। नॉर्मली आइस एंड वाटर, सॉरी, नमक के साथ अगर आइस लेते हो ना, तो नमक क्या करता है, आइस को बहुत देर तक आइस रहने देता है, मेल्ट करने नहीं देता, ठीक है ना। सो दिस इज फ्रीजिंग मिक्सचर ले लिया हमने। फ्रीजिंग मिक्सचर, ओके। नाउ अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता है किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका टेम्परेचर कम होगा और क्यों होगा। इसमें ये एक्सपेरिमेंट से पक्का पता चलता है कि एनोमलस एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है ना। सो लेट अस डू इट। पहले क्या है, इनिशियली बोथ द टेम्परेचर्स T1 एंड T2, अभी जस्ट लगाया है दोनों का, तो टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2 होगा, क्योंकि जो वाटर का टेम्परेचर
देखो अभी होप ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, कोई कोल्ड कंट्री में किया होगा, तो वहाँ का उसने दिखाया कि वहाँ का टेम्परेचर जो है ना 12 डिग्री सेल्सियस था। नॉर्मली हम लोग का 27-25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर का टेम्परेचर 12 तो नहीं होगा, बट चलो 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर लेते हैं। तो शुरू में जब हम दोनों टेम्परेचर को लगाए तो दोनों टेम्परेचर का वैल्यू रूम टेम्परेचर के लगभग, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होगा, पर लगभग इतना ही रहेगा, बट बोथ द टेम्परेचर विल शो सेम टेम्परेचर। So this is at time when t is equal to 0 ना, 0 टाइम पे। अभी जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, अभी क्या होगा देखो, नाउ फर्स्ट टेम्परेचर recorded by the lower thermometer T2 start decreasing, finally it becomes steady at 4 degree Celsius। अभी जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ना, तो T2 स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब T2 जो है ना, T2 जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा ये कम होगा। किसके कंपैरिजन में? T1 के कंपैरिजन में। और एट 4 डिग्री सेल्सियस जो है ना स्टेडी हो जाएगा। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स स्टेडी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अभी देखो मैं बताता हूँ। While the temperature of the upper temperature recorded in the upper thermometer T1 remains almost unchanged during the time। इसका टेम्परेचर घटते जाएगा और स्टेडी होगा, जबकि ऊपर वाला जो टेम्परेचर थर्मोमीटर था ना, इसका टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। ये पहले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होगा। पहले दोनों का टेम्परेचर सेम था, बाद में जैसे जैसे इनिशियल स्टेज में गए तो T2 कम होते जाएगा, T2 का टेम्परेचर, T1 ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द लोअर थर्मोमीटर रिमेन्स कांस्टेंट। ये जब 4 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस होके फिक्स हो गया, ठीक है, द अपर थर्मोमीटर शोज ए कंटिन्यूअस फॉल इन द टेम्परेचर अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या करेगा, ये 4 डिग्री में फिक्स हो गया और अपर का जो T1 अभी कम होते जाएगा till it becomes 0 डिग्री सेल्सियस। तो 3 ऑब्जर्व, फर्स्ट स्टेज में दोनों का टेम्परेचर सेम था, जैसे थोड़ा टाइम बीतते जाएगा ये टेम्परेचर कम होते जाएगा, लेकिन T1 जो है ना वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट कुछ देर के बाद जो है ना T2 4 डिग्री सेल्सियस में कांस्टेंट हो गया। अभी क्योंकि इधर कांस्टेंट होने का रीज़न ये है ना कि इधर का जो वाटर है ना, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन है ना, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेस डेंसिटी है ना, जो भी फ्रीजिंग मिक्सचर का जो इफेक्ट है कि भाई वाटर को ठंडा करना है, किसको ठंडा करेगा, इधर ठंडा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो वाटर का इधर मैक्सिमम है ना 4 डिग्री सेल्सियस में, तो नीचे तो आएगा ही नहीं। कन्वेक्शनल करंट जो भी होगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्रीजिंग मिक्सचर का जो इम्पैक्ट है ये क्या करेगा, ऊपर का गर्म वाटर नीचे आएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर का अभी क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद जब ये स्टेडी स्टेट अटेंड कर जाएगा, स्टेडी स्टेट अटेंड करना मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट दिखाएगा, तो क्या होगा, ऊपर का टेम्परेचर, ये जो थर्मोमीटर T1 है, ये थर्मोमीटर T1 जो है ना स्लो होते जाएगा, मतलब इसका जो रिकॉर्डिंग है टेम्परेचर का कम होते जाएगा, है ना। तो कितना कम होगा, इट विल अटेंड द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग आइस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक अटेंड करेगा। तो ये क्यों हो रहा, ये साइंटिस्ट जो है ना, इन्होंने क्या इससे क्या देखा, बिकॉज दिस हैपेंस, क्योंकि देखो नॉर्मल अगर बिहेवियर तुम देखते हो ना, अगर एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होता वाटर का, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाना एट 4 डिग्री सेल्सियस में, है ना, ये काम अगर नहीं होता तो क्या होता, दोनों का अगर थर्मोमीटर लगता तो दोनों का एक साथ टेम्परेचर ड्रॉप होके 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। पहले इसका टेम्परेचर कम हो के जैसे 4 डिग्री हो गया ना, बस भाई इसका जो है ना ज़्यादा डेंस हो गया। अभी इससे ऊपर जो भी वाटर है ना, उसका टेम्परेचर मतलब और कम होते जाएगा, तो डेंसिटी है ना, डेंसिटी उसका, और ये डेंसिटी इसका 4 डिग्री सेल्सियस में रीच हो गया, करेक्ट। ऊपर का अभी डेंसिटी कम हो जाएगा तो अब क्योंकि नीचे का डेंसिटी अभी कम होने वाला नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया तो मैक्सिमम अटेंड कर लिया ये, ओके। और ऊपर का अगर कम हो गया तो फिर लेस डेंस होगा तो ऊपर चले जाएगा।
तो और ये फिर 0 डिग्री आ जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि 2 थर्मोमीटर में से नीचे वाला थर्मोमीटर 4 डिग्री अटेंड करेगा, ऊपर वाला 0 डिग्री अटेंड करेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई फ्रीजिंग मिक्सचर का जो कोल्डनेस है वो केवल ऊपर का वाटर को ठंडा करने में लग रहा है, ये इस वाटर को, ना कि नीचे तरफ आ रहा है। करेक्ट। सो दिस इज हैपनिंग एबनॉर्मली एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेंड हो रहा है इसलिए ऊपर जा रहा है। करेक्ट। तो चलो अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया तुमको, एनोमलस एक्सपेंशन क्यों होता है, बिकॉज वाटर बॉन्डेज के कारण एक क्रिस्टलाइन शेप हो जाता है वाटर का, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। हाँ, तो नॉर्मल जितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था उससे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। करेक्ट। तो वॉल्यूम और सिंक होगा नहीं 4 डिग्री सेल्सियस करने के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी तुमको डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का भी ग्राफ क्लियर हुआ, हाँ, और वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ का भी क्लियर हुआ। होप्स का एक्सपेरिमेंट भी तुमको अभी समझ में आया। और जो इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्सपेंशन की कोल्ड कंट्रीज में वाटर पाइप बास्ट हो जाता है, एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करता है बिकॉज ऑफ दिस, है ना, ये सब क्लियर हुआ ना। अभी तुम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करो, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे।